तो हेलो एवरीवन। तो जैसा अभी आपने देखा कि हम लोगों ने एक वर्क किया था फिलिप लार्किन का मिस्टर बिल ने। तो अब हम लोग वही ब्लॉक 10 में फिलिप लार्किन का दूसरा वर्क करेंगे, चर्च गोइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है क्योंकि ये कभी ना कहीं आपसे या तो लॉन्ग आंसर नहीं तो आरटीटी में ये वर्क पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसका एक एडॉप्टेशन देखेंगे, डॉक्यूमेंट्री टाइप का, 4 मिनट का, ताकि हमें पोएम को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। और फिर हम ब्लॉक 10, और फिर हम जो है आंसर को करेंगे। तो विकास, वो डॉक्यूमेंट्री प्ले कर देना। Once I'm sure there's nothing going on, I step inside, letting the door thud shut. Another church, matting, seats and stone, and little books, sprawlings of flowers, cut for Sunday, brownish now. Some brass and stuff up at the holy end, the small neat organ, and a tense, musty, unignorable silence, brewed God knows how long. Hatless, I take off my cycle clips in awkward reverence. Move forward, run my hand around the font. From where I stand, the roof looks almost new, cleaned or restored. Someone would know, I don't. Mounting the lectern, I peruse a few hectoring large-scale verses and pronounce, "Here endeth," much more loudly than I'd meant. The echoes snigger briefly. Back at the door, I sign the book, donate an Irish sixpence, reflect the place was not worth stopping for. Yet stop I did. In fact, I often do, and always end much at a loss like this, wondering what to look for. Wondering, too, when churches will fall completely out of use, what we shall turn them into. If we shall keep a few cathedrals chronically on show, their parchment, plate and pyx in locked cases, and let the rest rent-free to rain and sheep. Shall we avoid them as unlucky places? Or after dark will dubious women come to make their children touch a particular stone, pick simples for a cancer, or on some advised night see walking a dead one? Power of some sort will go on, in games, in riddles, seemingly at random, but superstition, like belief, must die. And what remains when disbelief has gone? Grass, weedy pavement, brambles, buttress, sky, a shape less recognizable each week, a purpose more obscure. I wonder who will be the last, the very last, to seek this place for what it was. One of the crew that tap and jot and know what rude lofts were? Some ruined bibber, randy for antique, or Christmas addict, counting on a whiff of gown and bands and organ pipes and myrrh? Or will he be my representative, bored, uninformed, knowing the ghostly silt dispersed, yet tending to this cross of ground through suburb scrub, because it held unspilt so long and equably what since is found only in separation, marriage and birth and death, and thoughts of these, for which was built this special shell. For though I've no idea what this accoutred frowsty barn is worth, it pleases me to stand in silence here. A serious house, on serious earth it is, in whose blent air all our compulsions meet, are recognized and robed as destinies, and that much never can be obsolete, since someone will forever be surprising a hunger in himself to be more serious, and gravitating with it to this ground, which, he once heard, was proper to grow wise in, if only that so many dead lie round.
आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है क्या? नो सर। विकास स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, ओके। तो देखिए इस पोएम में क्या होता है कि एक जो स्पीकर होता है वो चर्च के अंदर जाता है। सबसे पहले वो श्योर कर लेता है कि कोई भी चर्च के अंदर ना हो। तो यहाँ पे जो स्पीकर दिखाया गया है वो अथीस्ट नहीं दिखाया गया। अथीस्ट होता है, नास्तिक होता है, तो वो चर्च के अंदर नहीं जाता। वो यहाँ पर एगोनिस्ट दिखाया गया है, ऐसा इंसान जो क्वेश्चन करता है। जैसे कि आप पोएम के अंदर जाते हैं तो वो क्वेश्चन कर रहा होता है चीजों को देख देख के कि भाई जैसे जैसे टाइम बीतता बीतता जाएगा ये जो जगह है ये लोग नहीं पहचानेंगे, लोग भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने चर्च पे आना छोड़ दिया होता है। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा होता है कि वो आखिरी पर्सन कौन होगा जो इस चर्च पे आएगा। हो सकता है मेरा रिप्रेजेंटेटिव आए या और कोई आए। तो ऐसे ऐसे करके वो बहुत से क्वेश्चन कर रहा होता है। क्योंकि जो रिलीजन होता है या जो चर्च की मतलब इंपॉर्टेंस होती है ह्यूमन लाइफ में वो कहीं ना कहीं आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कम होती जा रही होती है। लोगों ने चर्च जाना छोड़ दिया होता है। तो अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम पोएम के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन जो आपने मिस्टर बिलने में लिखा है वही सेम इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, तो आपको कुछ अलग सा इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग सीधे आते हैं वर्क के इंट्रोडक्शन में। तो चर्च गोइंग इज अ पोएम विच वाज द मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क ऑफ फिलिप लार्किन इन टर्म्स ऑफ हिज पोएट्री। तो जब हम कभी भी फिलिप लार्किन को के बारे में बात करते हैं तो हम उनका एक मास्टरपीस वर्क है या मैग्नस ओपस या मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क है वो है चर्च गोइंग। तो उसके बारे में बात करी जाती है। जैसे शेक्सपियर का जब भी नाम लेंगे तो हम लोग हैमलेट की बात करेंगे, ओथेलो की बात करेंगे। तो जब भी हम लोग फिलिप लार्किन का नाम लेंगे तो हम लोग चर्च गोइंग पोएम की बात करेंगे। राइटर लार्किन रिजेक्ट हिज ओन 22 पेज ऑफ लॉन्ग ड्राफ्ट। तो फिलिप लार्किन ने सबसे पहले 22 पेज की कोई पोएम लिखी और उसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि लार्किन सेटिस्फाइड नहीं थे। उनको लगा कि ये मैं इस वर्क के साथ इन जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने वो सारे पेज को रिजेक्ट कर दिया। पोएम इज अ पार्ट ऑफ इट पोएटिक कलेक्शन नोन एज लेस डिसीज। अगर ये आपको अच्छे से याद हो जाए तो लिख दीजिएगा, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि जानने को लगेगा देखो इसको पोएटिक कलेक्शन तक याद है। The poem is written in 1954 and published in 1595. तो पोएम 1594 में लिखी गई है और पब्लिश होती है 1595 में। चर्च गोइंग इज द पोएम इज द पोएटिक डिस्कशन बिटवीन फेथ एंड स्केप्टिसिज्म। तो फेथ होता है विश्वास और स्केप्टिसिज्म होता है संदेह करना। अब लोग उस अपने उस विश्वास पे संदेह करने लगे थे। जो उन्हें विश्वास था कि चर्च पे गॉड के ऊपर उन सब पे लोग संदेह करने लगे थे। द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज कन्वर्सेशनल। कि अब जो लैंग्वेज थी पोएम की वो थी कन्वर्सेशनल, कि ऐसा लग रहा है कि जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो जब आप लोग एडेप्टेशन देखते हैं तो आपको लगता है नहीं कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं? लगता है कि नहीं लगता है? जी सर। है ना? तभी मैं आप लोगों को एडॉप्टेशन दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को चीजों को कनेक्ट करने में आसानी हो। द स्पीकर ऑफ द पोएम वॉज एन एगोनिस्ट। अब देखिए ये आपको लिखना है एगोनिस्ट, कि भाई वो क्वेश्चन करता था, वो एथीस्ट नहीं था, वो नास्तिक नहीं था। But he raised a very valid about the importance of church in human life। अब यहाँ पे बहुत मतलब वैलिड क्वेश्चन को रेज करता है कि चर्च की क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में, एक आम आदमी के जीवन में। Since Larkin was himself an agonist, so maybe we can think, लिखा थोड़ा सा नीचे करने ना, think he was the speaker of the poem himself। तो देखिए जो लार्किन थे वो खुद एगोनिस्ट थे, वो रिलीजन के रिगार्डिंग सवाल करते रहते थे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि शायद जो फिलिप लार्किन हो वह इस पोएम के स्पीकर हो। अब देखिए आपकी पोएम की लाइन है, इसको आप अगर याद करके लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। प्लीज मी टू स्टैंड हियर इन साइलेंस प्लेस। कि भाई अब चर्च में क्या था? साइलेंस था ना, कि कोई नहीं था। अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज। कि भाई एक सीरियस हाउस है कि लोग प्रार्थना करने जाते हैं, प्रे करने जाते हैं। तो अ सीरियस हाउस ऑन सीरियस अर्थ इट इज। तो बहुत सिंपल सी लाइन मैंने आप लोग के लिए ली है ताकि आप लोग याद हो जाए। अब थीम है रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। कि भाई कहीं ना कहीं रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच लोगों में संदेह आ गया था ना, क्योंकि जब लोग रिलीजन ही नहीं लाएंगे तो स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आएगी। द मोस्ट प्रोमिनेंट थीम ऑफ द पोएम इज ह्यूमैनिटी इज पेंडुलम बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आप लोगों ने एक घड़ी देखी होगी जिसमें घंटा होता है ना, कि वो कभी इधर झूलता है कभी उधर झूलता है। तो यहाँ पे भी ऐसे दिखाया जा रहा है रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी। तो रिलीजन को आप एक समझ लीजिए क्वेश्चन है और स्पिरिचुअलिटी क्या है उसके आंसर्स हैं।
So religion is a set of ideas in which the serious about the existence of the life are answered with a specific set of belief कि भाई ह्यूमन एग्जिस्टेंस इसके क्या महत्व है, कुछ सेट ऑफ बिलीफ है कि मतलब कुछ आइडियाज है उनको बताया गया, जैसे आप लोगों को बताया जाता है प्रार्थना करने के लिए भाई सुबह उठो सबसे पहले सूर्यदेव को नमस्कार करो पैर छुओ। तो क्या है रिलीजन में कुछ सेट ऑफ आइडियाज है, रूल्स बनाए गए, बिलीफ बनाए गए कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। स्पिरिचुअल ऑन द अदर हैंड एक्सप्लोर दोस आंसर टू दैट क्वेश्चन। और स्पिरिचुअल क्या होता है, उन्हीं क्वेश्चन को हमें आंसर करता है, बताता है कि नहीं ऐसे से ऐसा करोगे वैसे से वैसा करोगे तो चीजें सही होंगी। जैसे आपका रिलीजन में कह दिया गया कि जी आप ऐसे की, स्पिरिचुअलिटी में आपसे कहा गया कि कैसे आपको बता दिया कि अपने वर्क से करो, लोगों किसी को बुरा ना करो, तो आपको कहते हैं सारी चीज स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जा रही है कि भाई योगा करो, ये सारी चीजें ना स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जा रही, भक्ति में लीन रहो, भजन गाओ। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको क्या करें स्पिरिचुअल बनने के लिए बता रही है। तो रिलीजन में आपसे जो भी आइडियाज या क्वेश्चन किए, स्पिरिचुअल क्या कर रहा है, दूसरी तरफ उन चीजों का आंसर कर रहा है। बैकग्राउंड द पोएम वाज रिटन इन द पोस्ट वॉर एरा बाय 1945। तो आपका वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था, तो उसके बाद का जो एरा था, उसके बाद का जो युग था, उसके बारे में हमें बताया जाता है। इट वाज मार्क एज अ डिक्लाइन ऑफ क्रिश्चियन स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड फेथ कि भाई जो क्रिश्चियन में स्पिरिचुअल वैल्यूज थी, फेथ थी, वो कहीं ना कहीं अब डिक्लाइन होने लगी थी। इट क्लियरली डिपिक्ट द सोशल सिनेरियो ऑफ द पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा कि भाई उस टाइम पे जो भी चीजें थी कि लोग भाई अथीस हो गए थे, लोगों ने चर्च जाना छोड़ दिया था, तो ये सारी चीजें लोग देखने लगे, हम लोग को इस पोएम के थ्रू दिखती है। जैसे आप देखते हैं जब वो चर्च में जाता है तो चर्च में कोई नहीं होता है ना, जैसा आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था पोएम। जी सर जी। हाँ तो वही दिखा रहा है कि भाई लोगों ने चर्च जाना छोड़ दिया, तो उस टाइम के हमें चीजों के बारे में बता रही है पोएम। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू एज फार एज यू कैन ओनली सी द बॉम्ब स्मोक एंड द सफरिंग ऑफ ह्यूमन कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद आप देख जितना भी दूर देख सकते हैं तो आपको क्या दिखता है, बमों का धुआं दिखता है और इंसान की सफरिंग दिखती है, रोने की आवाज दिखती है, चिल्लाहट दिखती है कि लोगों ने अपने लव वंस को खोया था। द वर्ल्ड वॉज अंडर द शीट ऑफ सफरिंग एंड सॉरो। तो एक तरह से पूरे जो दुनिया ने थी एक तरह से दुख का चादर ओढ़ ली थी, एक तरह से इतना ज्यादा गम था। अब कंक्लूजन पे आते हैं। लाइक सम अदर पोएम ऑफ द फिलिप लार्किन दिस पोएम इज आल्सो अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। जैसे कि मतलब आपको पता है ड्रामेटिक मोनोलॉग किसे कहते हैं? जिसमें सर हम लोग सिर्फ एक श्रोता की तरह सुनते हैं और पोएट अपनी हाँ बात कहता है। हाँ, जैसे आपने अडॉप्टेशन में देखा कि हम लोग क्या थे, स्पीकर अपनी बात कर रहा था और हम लोग क्या थे, साइलेंस लिसनर थे। ड्रामेटिक मोनोलॉग कौन अच्छा लिखता था आपके वर्क में, इस कोर्स में मेंशन है, जिसको मास्टर कहा जाता है? रॉबर्ट ब्राउनिंग सर। हाँ रॉबर्ट ब्राउनिंग, वेरी गुड। सिंबल, अ लॉट ऑफ सिंबल कैन बी फाउंड इन इट। ये पूरी पोएम में क्या है, बहुत से सिंबल है, बताता नहीं कि रूफ को बताता है, कहता है कि वहां पर कुछ आयरिश, यहाँ पर कुछ किताबें रखी होती हैं। तो पोएम में क्या है, बहुत से सिंबल्स हैं। द इमेजेस आर आल्सो देयर कि भाई वहां पर फोटोज भी हैं। द पोएम आल्सो डील विद द मेनी मॉडर्न एंड द पोस्ट मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पोएटिक जीनियस कि भाई जो जो पोएम में आपको मतलब मॉडर्न एज में जैसे थी पोएम लिखी जाती थी और पोस्ट मॉडर्न एज में जैसे थी पोएम लिखी जाती थी, तो उन सारी पोएम की कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को यहाँ मिलती है कि एक तरफ इंडिविजुअल की भी बात हो रहा है, एक तरफ सोसाइटी की भी बात हो रही है। एक थोड़ा सा नीचे करना। एक तरह से पोएटिक जीनियस कि भाई देखो उसने दोनों एज को एक ही पोएम में दिखाया है। अब उसमें क्या आता है, विच इंक्लूड द यूज ऑफ मॉकिंग टोन, आयरॉनिकल स्टेटमेंट एंड द कॉमनली वर्डली सब्जेक्ट यूनिवर्सलिटी कि भाई मॉकिंग टोन, चीजों का मजाक उड़ाना कि भाई वहां पर कुछ आयरिश पेन को डोनेट कर देता है ना, कि कहता है कि ये कोई वर्क प्लेस नहीं है, यहाँ पर खड़ा रहना है। आयरॉनिकल स्टेटमेंट देता है कि भाई लोग यहाँ पर आना छोड़ देंगे क्योंकि अब लोगों का मतलब विश्वास उठ चुका है, तो ऐसे ऐसे करके आयरॉनिकल स्टेटमेंट देता है। और कॉमनली वर्डली सब्जेक्ट यूनिवर्सलिटी, रिलीजन के बारे में बात करता है, जैसे नहीं होता है कि रिलीजन के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, जैसे यूनिवर्सल टॉपिक है कि लोग हर कंट्री में डिस्कस करते हैं, चाहे इंडिया हो अमेरिका हो, तो ऐसे रिलीजन भी एक यूनिवर्सल टॉपिक है कि जिसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं। एंड ऑफ द पोएम ही कम टू अ कंक्लूजन, द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड कैन नेवर बी एंड। देखिए एंड में कंक्लूजन आता है कि भाई जो बॉन्ड ह्यूमन और इंसान, भगवान और इंसान का जो बॉन्ड है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। कि भाई लोग पैदा होंगे, पैदा होने के बाद बैप्टिज्म होता है क्रिश्चियनिटी में, दो तीन एक मतलब प्रथा होता है, उनकी रिचुअल होती है, तो लोग उसके लिए आएंगे। और जब लोग खत्म होंगे तो वहां पर क्या होता है, क्रिश्चियनिटी के ग्रेव यार्ड में मतलब दफनाया जाता है, चर्च के ग्रेव यार्ड में, कब्रिस्तान में, तो लोग मरने के बाद वहां दफनाए जाएंगे। तो आप जब पैदा होंगे तब भी चर्च की आपको जरूरत है, और जब आप मरेंगे तब भी आपको चर्च की जरूरत है, तो ये बॉन्ड कभी खत्म नहीं होगा।
यू नीड द चर्चेज और चर्च यार्ड फॉर योर फाइनल डेस्टिनेशन, कि भाई तुम्हें चर्चेज और चर्च यार्ड चाहिए होंगे फॉर योर फाइनल डेस्टिनेशन, चाहे अपनी चाहे वेडिंग करने के लिए, चाहे फिर मरने के बाद खत्म होने के लिए तुम्हें वहां दफनाने के लिए, विच इज बीनीथ द सॉइल, मतलब सॉइल के नीचे आपको दफना दिया जाएगा। द चर्च विल परफॉर्म देयर ड्यूटी इवन इन द फ्यूचर, कि भाई ऐसा तो है नहीं कि लोग आज के बाद जनरेशन खत्म हो जाएंगे, लोग फ्यूचर में भी पैदा होंगे और मरेंगे, तो चर्च क्या है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करती रहेगी। एंड दोज हु कम फॉर रिडेम्पशन एंड सेलिब्रेशन चर्च विल प्रोवाइड देम, रिडेम्पशन और सेलिब्रेशन, कि भाई मेरे पाप से मुझे मुक्ति मिले या इन संसारिक जीवन से मुझे मुक्ति मिले, तो इन सब की लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए आएंगे। जैसे होता है ना क्रिश्चियनिटी में, अगर किसी ने कुछ अपने में क्या होता है ना, जैसे किसी ने कुछ पाप कर दिया तो कहते हैं गंगा नहा लो, तो उनमें क्या होता है ना कि क्रिश्चियनिटी में एक नियम है कि अगर आपसे जैसे कोई पाप हो गया, तो जो वहाँ के प्रीस्ट होते हैं आप उनके सामने कन्विंस कर लीजिए, बता दीजिए, तो वो आपको तरीका बताएंगे कि आप ऐसे से ऐसा करें तो आपके साथ वो पाप धुल जाए। जो लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, जो लैंग्वेज है पोएम की वो सिंपल है और आसानी से समझ में आ जाती है। लार्किंग यूजिंग द कॉलिकल स्पीच, कॉलिकल अभी आप लोगों को पता है कि ऐसी डायलेक्ट वाली लैंग्वेज जाकि जो कि पोइट्री के लिए आइडियल लैंग्वेज नहीं मानी जाती, लेकिन क्या आता है इससे जब आप कॉलिकल स्पीच को यूज करते हैं तो इससे आपका बहुत वर्क जो बहुत रियलिस्टिक लगता है। तो कॉलिकल स्पीच यू टू मेक द मोर रियलिस्टिक एंड लाइक मोस्ट ऑफ द पोएम ऑफ लार्किंग, इन दिस पोएम लार्किंग ऑल्सो गिव मैसेज टू हिज रीडर। तो जैसे आप लोगों ने देखा है कि अपनी हर पोएम में लार्किंग कोई ना कोई मैसेज देता है, इस पोएम में भी उसने एक मैसेज दिया है। Visiting the church twice a day will not give anyone a success, but hard work provide them। तो कहते हैं ना लोग, कुछ लोग होते हैं ना दिन में पूजा ही पाठ करते रहते हैं लेकिन हार्ड वर्क कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। तो कहता है कि दिन में दो दो बार चर्च जाने से तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी, कठिन परिश्रम करने से मिलेगी। जैसे कहानी का कर्म ही पूजा है, तो यहाँ पर वही चीज कह रहा है वो। When people go to church and their prayer was not answered, they just give up their prayer। जैसे होता है लोग चर्च पे जाते हैं या कहीं भी मंदिर पे जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मुझे भगवान ये दिला दो वो दिला दो, और जब उन्हें कुछ समय तक वो चीज नहीं मिलती है तो लोग क्या होते हैं प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। दे शुड अंडरस्टैंड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, तो उनको ये समझना चाहिए कि भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं, जो मतलब हार्ड वर्क करते हैं। ओनली प्रेयर्स आर नॉट इनफ, स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क आर ऑल्सो नेसेसरी। तो कह रहा है कि प्रार्थना करना जरूरी नहीं है, आपको प्रार्थना करने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत? नो सर। आपका विकास रिकॉर्डिंग ऑफ कर